Good morning, all. Good morning. एक बार वॉल्यूम देखता हूँ. Good morning. Okay. It seems you people are least interested. Correct? You people are least interested. ऐसा लग रहा है मुझे. क्या रे बच्चों? You people are least interested. Sure? बोलो एक बार. वॉल्यूम आ रहा है रे? प्यारे. Can you hear? Hope audio and video both are clear. Dr. Divya. कोई इंटरेस्ट ही शो नहीं कर रहा. पता नहीं. कुछ कुछ तो गड़बड़ है. मुझे तो कुछ. अरे यार इस पे लगाएंगे. क्या हुआ? हाँ, अभी सही है. So is there any lag? कोई लैग है सर? नो लैग. एवरीथिंग इज फाइन ना? तो अभी कंटिन्यू कर सकते हैं सर? सर वी आर इंटरेस्टेड सर. सॉरी कल लाइव अटेंड नहीं कर पाया बट आई हैव सीन रिकॉर्डेड. तो विनीत विनीत शाह. तो इफ यू हैव वॉच्ड रिकॉर्डेड देन हाउ वाज द क्लास? कैसा रहा क्लास? अगर आप रिकॉर्डेड देखे तो क्लास कैसा रहा? मित्रों. चलो 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 1 मिनट चाय पी लेता हूं. विल स्टार्ट. मैं अगेन आई एम टेलिंग यू. लास्ट 8 मंथ से for the last from the last 8 months I am preparing new questions for gate 2026. जो सब्जेक्ट्स मैं प्रिपेयर किया सर. दी सब्जेक्ट्स थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मशीनरी, heat transfer plus applied thermodynamics, then SOM, machine design, engineering mechanics, TOM, mathematics, aptitude, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग. ये सारों के नए क्वेश्चंस आई हैव प्रिपेयर्ड सर. तो मैं देखता हूं सर. अगर आप सीरियस है तो यूट्यूब पे सही चल रहा है तो आई विल टेक. अदरवाइज मेरे पर्सनल स्टूडेंट्स है उन्हीं से डिस्कस करूंगा दिस क्वेश्चंस. बिकॉज इस बार जो इसरो में डिस्कस किया एज इट इज क्वेश्चंस 12 क्वेश्चंस आए सर. तो मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है सर बिकॉज आई वांटेड टू गिव समथिंग टू यू. बट आई एम नॉट सीइंग एनी इंटरेस्ट फ्रॉम योर साइड. कोई प्रॉब्लम नहीं है सर. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. बिकॉज ऑलरेडी हैव मेड सम वेरी गुड क्वेश्चंस. मैं अपने पर्सनल स्टूडेंट्स को दे दूंगा. ठीक है. मतलब 10 लोग आके लाइव देख रहे हैं मेरा क्लास. बहुत बढ़िया. वाह. इट्स अ शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम रादर देन. अगर मैं और कहीं इन्वेस्ट करता हूं तो सही रहेगा.
सीरियसली। ग्राफ से पहली बार पढ़ा विल्सन हैरिस मॉडल, थैंक यू। ग्राफ से समझ में आया? चलो, नाउ विल टेक अ सेकंड मॉडल। EOQ with shortages. Right. Very important, sir. Very, very important. EOQ with shortages. ठीक है सर। Right. ने कल ऑलरेडी बता दिया था, yesterday I taught कि today I'll be covering shortage model. बोला या नहीं बोला? I taught. चलो, first I will not take any of your questions. First let me cover in a systematic detailed manner. मान लो, सुनो carefully. Let us assume that today is जो भी डेट है, so first of this month, 1st of December. ठीक है सर, 1st of December. Okay, let the daily consumption be any item. Let the daily consumption be very important model, sir. So मुझे आज क्या कर रहा हूं ना, I'll cover this model. After covering this model, I'll be taking questions from yesterday's model and this model. सारे questions अभी आज ही cover कर दूंगा sir. Okay, now let the daily consumption be some 5 per day. This is the demand. We can say the demand is 5 per day. Okay, no problem at all. This is the demand per day. Imagine carefully. So, मेरे प्यारे दोस्तों, how much will be the monthly consumption? Dear students, how much will be the monthly consumption? So, daily it is 5. If daily it is 5, monthly consumption will be 150. Correct now? It is 150. This is the monthly consumption. Okay, no problem at all. So, suppose I plot a graph. I will take here, what I take here is, क्या ले लेंगे सर? Time. And here I take quantity. Quantity क्यों? ध्यान से सुनिएगा सर, सुनो मेरे प्यारे बच्चों. So suppose this is 150. Suppose this is 150, 150, and this is first of the month, and this is 30th of the month. And say जो भी दिसंबर में 31st रहता है ना, वो सब फर्स्ट ऑफ एनी वन एंड 30th, मतलब मंथ हो गया. 150 is consumed. So what is the daily consumption, sir? The daily consumption is 5. Now imagine that on 30th, complete items are consumed. There is nothing left in our storeroom. This situation we call it as shortage. तो अब मैं क्या करूं सर? ध्यान से सुनिएगा सर. अब देखो, the items are not yet arrived. अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे कस्टमर्स है. मैं थोड़ा सिस्टमेटिक में पढ़ाऊंगा सर. I'll teach in a systematic manner. देखो, so regularly customers are coming to me, daily they are coming to me. So what I said is, regularly they are coming. What I said is, I don't have items now, please go. वो बोले, no problem, we will wait. So please write. तो क्या हुआ, नेक्स्ट मंथ, ध्यान से सुनिएगा, नेक्स्ट मंथ फर्स्ट 5 ऑर्डर्स आ गए, बिकॉज एवरी डे इट इज 5 ना. सेकंड के दिन और 5 ऑर्डर्स आ गए, थर्ड के दिन और 5 ऑर्डर्स आ गए सर. नाउ व्हाट इज द डेट टुडे? 3rd of next month, जनवरी. ये दिसंबर हो गया सर, दिसंबर इज ओवर, दिसंबर 30. नाउ जनवरी 3 तक what I have permitted shortages. What do you mean by permitted? मैं अपने बुक में लिखा, someone has come, he wants 5 items, another person has come, he wants 2, another 3, another. तो daily 5 का consumption 3 दिन लिया सर. देखो एक बार, look at carefully. First day, second day, third day.
तो फर्स्ट डे कितना होगा सर? 5 आइटम्स, वेरी गुड। सेकंड डे कितना होगा? अनदर 5 आइटम्स। थर्ड डे कितना होगा? अनदर 5 आइटम्स। so this total is 15. This total is 15, but please note down that this is known as shortage. मेरे पास नहीं है, लेकिन पहले दिन के 5 days, सेकंड डे के 5 days, थर्ड डे के 5 days, टोटल 15 days I have permitted, and इसको बोलते हैं shortage quantity, shortage quantity, and this is our shortage time, जो भी है shortage time. So I have permitted. तो अब क्या होगा? Immediately stock आ गया, तो stock आने के बाद क्या होगा सर? फर्स्ट बैक ऑर्डर. व्हाट डू यू मीन बाय बैक ऑर्डर? टुडे इज फोर्थ, लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड, टुडे इज फोर्थ, बैक ऑर्डर, बैक डेट के जो भी शॉर्टेजेस है फर्स्ट आई एम गिविंग देम. तो मैं क्या कर रहा हूं? देखो 15 शॉर्टेज पहले उनको दे दूंगा, देने के बाद आफ्टर गिविंग ऑल द शॉर्टेजेस, आफ्टर फुलफिलिंग ऑल शॉर्टेजेस, अभी स्टॉक कुछ बचेगा, अगेन इट विल बी कंज्यूम्ड अगेन. तो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा सर? प्लीज टेल मी, आर यू अंडरस्टैंडिंग? लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, अभी आपको समझ में आएगा सर. लुक एट केयरफुली मेरे प्यारे दोस्तों, डोंट वरी, आई एक्सप्लेन वेरी नीटली, ये पता नहीं यार ये ऐसा क्यों लेता है. हाँ, राइट, सही है, नहीं है. ओके, लेट दिस बी टाइम ऑन दिस एक्सिस एंड लेट दिस बी क्वांटिटी. ध्यान से सुनिएगा सर. ओके, दिस इज क्वांटिटी. ओके, लुक एट केयरफुली, वी आर कंज्यूमिंग, सुनो केयरफुली, कंज्यूमिंग. सो यहां तक जीरो स्टॉक हो गया, but still I am permitting for a few days, then I am stopping there, because zyada shortage is also dangerous. So have you understood, my dear students? Please explain once. Let me explain, sir. Let me explain. मैं क्या बोल रहा हूं सर? Whenever it is above, इस baseline से above है, means there is a stock available in our store room which I can sell. But now स्टॉक नहीं है, मेरे पास स्टॉक नहीं है, फिर भी मैं क्या कर रहा हूं? my customers are saying no problem, when the stock is are available then I will take. इसको बोलते हैं shortages. तो they have come and they say, I said stock will come after 3 days. I said the stock will come after 3 days. So for 3 days I'm taking those shortages. मतलब what is the daily consumption sir? Daily consumption is 5. तो 3 दिन के लिए कितने shortages होंगे सर? मेरे पास स्टॉक नहीं है, मेरे पास स्टॉक जीरो है सर. देखो my stock is 0 0 0 नहीं है. देखो बेस लाइन से ऊपर स्टॉक इज अवेलेबल, डेली कंज्यूम. नाउ द कोई स्टॉक नहीं है, but still what I'm doing is I'm taking orders. First day he said 5 units, second day 5 units, third day 5 units. So these are the 3 days. For 3 days I have इतना ऑर्डर लिया सर, मेरे पास नहीं है फिर भी ऑर्डर लिया. तो जैसे ही मेरे पास स्टॉक आएगा पहले मैं किसको दूंगा सर? जैसे में देखो, आप नहीं समझे, मैं दोबारा बता रहा हूं सर, इधर देखो, लेट मी एक्सप्लेन. Let me explain. Suppose I'm I'm ordering 180 units. I'm ordering 180 units. तो मैं क्या कर रहा हूं? इमेजिन इसमें 30 is shortage. Just imagine. तो मैं क्या करूंगा सर? Out of 180 जो ऑलरेडी मेरे पास स्टॉक नहीं था, लेकिन वो लोग कस्टमर्स हैव टेकन द ऑर्डर. अरे यार, आप लोगों को समझ में आ रहा है सर? अरे आर यू फॉलोइंग माय डियर स्टूडेंट्स? आई आई डोंट हैव, मेरे पास, दोबारा बता रहा हूं, मेरे पास स्टॉक नहीं है. आई डू नॉट हैव स्टॉक. अग्रीड, आई डोंट हैव स्टॉक. तो मैं क्या कर रहा हूं सर? एज आई डू नॉट हैव स्टॉक, मैं ऑर्डर ले लूंगा सर, एंड आई एम सेइंग दैट मेरे पास शॉर्टेज है, फिर भी पीपल आर कमिंग एंड सेइंग आई विल परचेस व्हेन द ऑर्डर इज अराइव्ड. सो दैट इज नोन एज शॉर्टेज. ये भी नहीं आ रहा सर, बहुत बुरा हाल है सर. सो दिस इज, तो वंस द स्टॉक इज अराइव्ड, तो आउट ऑफ 180 फर्स्ट मैं 30 शॉर्टेज को दे दूंगा, बचा कितना सर? 150.
अब 150 will go to my store room, 150 will be going to inventory, and this 30, देखो, though I ordered 180, out of 180 these 30 items will be directly given to the customers. ये जो 30 items है ना, डायरेक्टली मैं कस्टमर्स को दे दूंगा, सिर्फ 150 है वो स्टोर हाउस में आएगा. इज इट क्लियर सर? इज इट क्लियर? अब देखो, तो एक बार ग्राफ देख लेना, एक बार ग्राफ लेना, देखो, कंज्यूम 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 कंज्यूम. नाउ देयरफॉर दिस इज द क्वांटिटी. व्हाट इज द शॉर्टेज क्वांटिटी? दिस इज माय शॉर्टेज क्वांटिटी. मित्रों, मैं दोबारा बता रहा हूं सर, एक बार देखना. दिस इज माय शॉर्टेज क्वांटिटी. मित्रों, दिस इज माय शॉर्टेज क्वांटिटी. दिस I'll write it as S. ये लेंथ. Is it okay? अभी अभी भी नहीं आया समझ में? Have you understood, my dear students? This is the shortage. इतना क्वांटिटी, मतलब ज्यादा भी आलव नहीं करना. मान लो आप ऑर्डर ही नहीं है, मान आपके पास स्टॉक नहीं है, आप ऑर्डर ले रहे, अगर मान इमेजिन that the stock is not arriving on time, so you are giving them 3 days, the stock will arrive in 3 days, and you are accumulating. अगर ज्यादा ले लेंगे, if the stock is not arrived, then you will be in problem. That's why in limited quantities you take the order. Is it clear? Is it clear? Yes. Now मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे dear students, observe here. So what I am doing is, देखो, अरे यार, this is the total quantity. मित्रों, this is the total quantity that I am purchasing. This is the total quantity मैं ऑर्डर कर रहा हूं. आउट ऑफ दिस क्वांटिटी, दिस इतना तो शॉर्टेज के लिए गया. इमीडिएटली व्हेन द स्टॉक हैज अराइव्ड, तो इमीडिएटली वो शॉर्टेज दे देंगे. क्या आप ला के स्टोर रूम में रखेंगे? नहीं ना. इमीडिएटली दैट शॉर्टेज विल बी फुलफिल्ड. तो नाउ वंस दैट इट इज फुलफिल्ड, हाउ मच इज गोइंग टू द इन्वेंटरी? कितना इन्वेंटरी जा रहा है सर? देखो एक बार, आई हैव परचेज दिस मच, आउट ऑफ दैट देखो एक बार इतना तो गया. नाउ लेट मी ड्रॉ द नेक्स्ट साइकिल. एक बार देखना सर, द सेम साइकिल इज रिपीटेड. अरे यार, एक बार देखना, द सेम इज रिपीटेड. तो अब देखो, कैन आई से आउट ऑफ द टोटल स्टॉक आई हैव परचेज, आउट ऑफ द टोटल क्वांटिटी क्यू हैव परचेज, दिस इज शॉर्टेज दे रही है, तो ये कहां जाएगा सर? स्टोर रूम में जाएगा. ये स्टोर रूम में जाएगा, एंड दिस आई कॉल इट एज मैक्सिमम इन्वेंटरी. इसको बोलते हैं मैक्सिमम इन्वेंटरी. मैक्सिमम इन्वेंटरी, माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द मैक्सिमम इन्वेंटरी. अरे ये होता क्या है रे? मैं बताता हूं सर. दिस इज द मैक्सिमम इन्वेंटरी. इसको लिखेंगे आई एम. एम स्टैंड्स फॉर मैक्सिमम. ध्यान से सुनो. इवन दो आई परचेस्ड 180 क्वांटिटी, out of 180 quantity, 30 quantity has gone for shortages. जैसे ही स्टॉक आया, immediately shortage को दे दूंगा. I will not take those into my storehouse. Immediately I'll give. How much is left? How much is left? It is 150. That is IM. So therefore, this quantity IM is 150, S is 30, 150 plus 30, 180. That is the. Is it clear, sir? क्या ये यहां तक समझ में आया सभी को? Please tell me, is it clear? If this is clear, I'll proceed. Is it clear? Yes, yes, yes. अब देखिए सर, ध्यान से सुनो. अब ब्यूटीफुली देखेंगे. And if you observe clearly, the cycle is same thing जा रहा है सर. The cycle is, देखो देखो एक बार, the same is going on, going on. Same pattern देखो, इधर से ऐसा जाके फिर अदर. देखो, कैन आई कॉल साइकिल का मतलब एग्जैक्टली जहां से शुरू होता है वहां एंड. देखो, अगर मैं इस पॉइंट को स्टार्टिंग लेता हूं, इधर देखो,
इधर से माय डियर स्टूडेंट्स, इफ आई टेक दिस एज द स्टार्टिंग पॉइंट, देखो, if I take this as the starting point, from here it is moving up, coming down, up. So can I say this point is same as this point? देखो, देखो, यहां से ग्राफ उठ रहा है, यहां से ग्राफ उठ रहा है सर. So why is it a vertical line? Instantaneous replenishment, immediately order आ गया, ठीक है. तो ये हो गया. Can I call this as the cycle time t? क्या मैं इसको साइकिल टाइम टी लिख सकता हूं सर? बिकॉज साइकिल का मतलब एग्जैक्टली सेम. देखो, यहां से ग्राफ ऊपर उठ रहा है, नीचे आ रहा है, फिर यहां से फिर ऊपर उठ रहा है. सो कैन आई से दिस एंड दिस आर करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स, देयरफॉर दिस इज द साइकिल. दिस साइकिल हैज टू पार्ट्स. वन इज जहां पे इन्वेंट्री अवेलेबल है, आई विल राइट इट एज T1, वेयर देयर इज इन्वेंट्री, एंड अनदर इज जहां पे इन्वेंट्री नहीं है, वेयर द शॉर्टेज इज अलाउड. तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, what is the duration for which the shortages are allowed? तो this is the time for which I am allowing shortages. इसका मतलब मेरे पास स्टॉक नहीं है, फिर भी मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, ये 2 दिन 3 दिन एक्सेप्ट कर रहा हूं. दैट इज, दिस इज द टाइम फॉर विच शॉर्टेजेस आर अलाउड. दिस इज द टाइम फॉर विच देयर इज अ इन्वेंट्री इन द स्टॉक, बेस से ऊपर है, एंड द टोटल साइकिल टाइम इज दिस वन, दिस वन. क्या ये क्लियर है सर सभी को? प्लीज टेल मी, इज दिस क्लियर? इफ दिस इज क्लियर, आई विल प्रोसीड सर. मित्रों, यस, अब देखिए सर, एंड यू ऑलरेडी नोन कि दिस इज द कंजम्पशन, सो इट्स का स्लोप है डी पर यूनिट टाइम, इसका स्लोप है डी से पर ईयर, सारे ईयर में ले लेंगे. चलो, इसका स्लोप है डी, कल देखे थे. ओके, वेरी गुड. नाउ स्टॉप. दिस इज द कंजम्पशन इज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म. बहुत केयरफुली देखो सर. हाउ मेनी ट्राइंगल्स डू आई हैव? मुझे दिख रहा है 3 ट्राइंगल्स. मैं बताता हूं क्या क्या ट्राइंगल्स है. देखो, लेट अस टेक दिस एज ए, this as B, AB, this as C, this point कहां लिखेंगे? C, this is C, D and E. मेरे प्यारे दोस्तों, what is, एक बार देखो, इसको भी ले लेंगे F. Can I say there is one triangle BFD? एक बार देखो, from the triangle BFD, आराम से देखो, triangle BFD, एक बार देखो. So if you take this bigger triangle, मित्रों, if you take this bigger triangle, what is the slope? इसका slope तो D है sir. Slope is always equal to tan theta, tan theta. So what is tan theta? Opposite by adjacent. Can I write इसका slope तो D है sir. Every point there is. If I take the bigger triangle FBD, एक बार देखो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार देखो, I will write like this. This is B, this is D, and this is F. देखो, FBD. So what is this total horizontal length? It is the cycle time, capital D. Okay. What is this total length, sir? Can I write this total length as Q, which can be written as IM plus S? लिख सकते सर. This total vertical length B से लेकर F is S plus IM. What is IM? Maximum inventory which is available in the storehouse. So this is IM plus S, or which can be written as Q. So I will write this as, this is Q, which is also IM plus S. Excellent sir. So now you tell me, slope is, इसका slope already D है sir. इसका slope already D है. So what is the slope? It is Q by T. ये मेरा पहला इक्वेशन है सर. Is the first equation clear sir? Is the first equation clear sir? नो 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 नो, यहाँ पे assumption है कि instantaneous replenishment सर. Shortages are permitted and instantaneous replenishment. ठीक है, of course contradicting है, लेकिन वो अलग वही है सर. Is it okay? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं सर? क्या पहला समझ में आया सर? This total length is Q and this is T. This total length is Q, this is T. Tan theta D is equal to Q by T. पहला equation. Now let us take another triangle. Can I take ABC? From the triangle ABC, the slope is D. देखो, ये एंगल और ये एंगल में कोई फर्क है सर? The same angle. और ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा. हर एक का स्लोप D है सर. Now let us take triangle ABC. मित्रों, I will take ABC. बताओ, from ABC, can I write tan theta is IM by T1. So slope D is equal to
आई एम बाई टी वन। क्या ये बात सभी को समझ में? लेट मी रिपीट सर, tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट, दिस इज आई एम। यू मे बी वंडरिंग सर आप पागल हो गए, डायरेक्टली हमें इक्वेशन देके छुट्टी मारवा दो। लेकिन आप नहीं समझते सर इसका डेप्थ, because you don't know where from questions are coming. You don't know where from questions are coming. So he may be asking you T1, he may be asking you T2, he may be asking you S, he may be asking you IM. तो इसलिए आई एम ओपनिंग अप एवरीथिंग। तो फ्रॉम दिस ट्राइंगल एक बार देखो, ए बी सी, सो व्हाट इज दिस? tan theta is IM, tan theta is opposite by adjacent. Can I write this as D? Slope D is equal to IM by T1. Yes, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे सर। Now, there is one more triangle, ये वाला देखो, CDE. Now you tell me, what is the slope, sir? इसका slope है D, same line, same line, same line. So what is the slope? D. Slope is equal to this length by this length. Already this length is S. ये वाला length S है sir, ये देखो इधर S. So tan theta is, इसका slope T है, is equal to S by T2. It is S by T2. Hope this is clear. So let me take this as equation number 3. तो क्या आप लोगों को इक्वेशन समझ में आया सर? ऑल ऑफ यू हैव यू अंडरस्टूड इक्वेशंस? तीनों इक्वेशंस समझ में आ गए सर। एनी अदर इक्वेशन दैट आई कैन कंस्ट्रक्ट? एनी अदर इक्वेशन? एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल्स, तीन, बस खत्म है सर। तो अभी हम ये ले लेंगे, बहुत बढ़िया सर। सो लेट मी राइट द फर्स्ट इक्वेशन इज T is equal to Q by T. The second equation is D is equal to Im by T1, and the third equation is D is equal to S by T2. Let me check once, sir. S is equal to D is equal to S by T2. D is equal to S by T2. Yes. Uh, D is equal to Im by T1. D is equal to Im by T1, and D is equal to Q by T. Yes, correct. And you also know one thing: the total cycle time is equal to T1 plus T2. एक बार देख लीजिए सर. Please see the cycle time. The total cycle time is equal to T1 plus T2. T1 plus T2. I think यहां तक किसी को कोई टेंशन नहीं है. Is it okay, sir? मेरे प्यारे बच्चों, is it okay? Is it okay? Yes. अब हम आगे बढ़ेंगे सर. Let us see. Yesterday कितने कॉस्ट आए थे सर? Let us try to write the total cost. हम अब total cost लिख रहे हैं. And one more thing, you know that the order quantity Q is equal to maximum inventory plus shortage. The order quantity Q is equal to देखो एक बार, this Q is equal to Im plus S. Absolutely fine. So total cycle time is equal to T1 plus T2. That is also fine. Let's proceed, sir. अब देखते हैं सर. Now, guess मारो sir. How many costs are there? एक बार guess मारो sir. How many costs are there, sir? Let me see whether you can. कल हम देखे थे आइटम कॉस्ट, वो तो कांस्टेंट है. आइटम कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट. आइटम कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट. आज कितने रहेंगे सर? देयर विल बी आइटम कॉस्ट क्योंकि यू आर परचेसिंग. देयर विल बी ऑर्डरिंग कॉस्ट बिकॉज यू आर ऑर्डरिंग. देयर विल बी कैरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट बिकॉज यू आर होल्डिंग सम इन्वेंटरी. अपार्ट फ्रॉम दैट यू आर अलाउिंग सम शॉर्टेजेस. तो शॉर्टेज का कॉस्ट होगा. तो एक स्टूडेंट ने मेरे से बोला शॉर्टेज का कॉस्ट कैसा होगा सर? वेरी गुड. जैसे ही आइटम्स आ गए, बिकॉज इट इज शॉर्टेज, तो इमीडिएटली फॉर बेटर लाइक गुडविल, इमीडिएटली आई विल अरेंज अ सेपरेट व्हीकल एंड आई उनको बोल दूंगा अभी स्टॉक आया, पहले जो ऑर्डर दिए ना उनको बैक ऑर्डर पहले उनको सप्लाई करके आ जाना. तो सेपरेट कॉस्ट लगेगा सर. इज इट ओके? सो अब लिखेंगे सर. नो total cost is equal to item cost plus ordering cost plus holding cost plus shortage cost. Is it fine? आइटम कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट प्लस शॉर्टेज कॉस्ट. बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया. यहां तक सभी को समझ में आ गया सर? बिल्कुल आ गया सर. अब देखो, व्हाट इज द आइटम कॉस्ट सर? ये तो बहुत सिंपल है सर. द आइटम कॉस्ट इज इक्वल टू
एक आइटम के लिए सी रुपीस हो रहा है. लेट अस कैलकुलेट फॉर 1 year. So for 1 year, how many items are consumed? The consumption ratio is D. So for one item it is C. For D items it will be D into C. So therefore it is D into C, sir. So the item cost is D into C. ये हो गया सर. मित्रों ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है सर, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. So first is ओवर. नेक्स्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट. मेरे प्यारे दोस्तों, दिस ऑर्डरिंग कॉस्ट आई राइट इट एज COC. देखो, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है सर? शैल वी प्रोसीड? व्हाट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट? फॉर वन ऑर्डर इट इज C0 रुपीज. फॉर वन, एक बार ऑर्डर करेंगे, इफ यू ऑर्डर फॉर वंस यू विल बी चार्ज C0. And for 1 year, how much I'm ordering? देखो, the annual demand is D and every time I'm ordering Q. नहीं आया समझ में? मान लो the annual demand is 12,000, every time I'm ordering 1,000. तो कितने ऑर्डर्स करना है सर मेरे प्यारे दोस्तों? the annual demand is 12,000 and every time I'm ordering 1,000. So how many orders I have to place? 12 orders. 12 into 1,000 is 12,000. So how did you get that 12? D by Q. D by Q. So therefore number of orders are D by Q. मेरे प्यारे दोस्तों, एक ऑर्डर के लिए C0, number of orders are D by Q. This is nothing but D C0 by Q. This is your ordering cost. So I'll write OC is equal to D C0 by Q and there is no problem with ordering cost. क्या ये बात सभी को समझ में आए मेरे प्यारे सज्जनों? यस यस. अब बचा है अब सबसे इंपॉर्टेंट. व्हाट इज दैट? कैरिंग कॉस्ट. वेट माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स गो टू कैरिंग कॉस्ट. कैरिंग कॉस्ट, or this is also known as holding cost. Anyone? You know, my dear students, the carrying cost is, ध्यान से सुनो, for one, देखो, for one item, what is the carrying cost? CC. For one item it is CC. एक आइटम के लिए CC है. तो if you are carrying one item for 1 year, we are charging CC rupees. For example, let CC be 5. क्या फिजिकल मीनिंग है सर इसका? Let CC be 5. उसका फिजिकल मीनिंग क्या है सर? If you are carrying one item for 1 year, it will be charged 5 rupees. That is the meaning of CC. Then do you have only one item in the storage? No. But actually the problem here is, मेरे प्यारे दोस्तों, the problem here is my inventory is changing. Sir जी, तो क्या लेना चाहिए सर? What am I? Very good. Someone said average. Great students of India. So therefore, now I write this as CC into average inventory. Q average. This is average inventory. मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पे स्टूडेंट्स में भी कमिटिंग मिस्टेक. सर, हाउ टू फाइंड आउट द एवरेज इन्वेंटरी? अब ध्यान से सुनो सर. हाउ कैन आई फाइंड द एवरेज इन्वेंटरी? एक बार देखो मेरे मित्रों, इधर देखना सर. जस्ट लुक एट, दिस इज द साइकिल. यहां से ग्राफ उठ रहा है और यहां से अगेन ग्राफ उठ रहा है. ये साइकिल है सर. एंड यू नो वेरी वेल, दिस इज आवर स्मॉल t1 and this is our small t2 and this is our capital T. ठीक है. And you know very well, this is IM, this is S. मुझे बताइए, I want to calculate the average inventory. बहुत बढ़िया सर. वेट 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 वेट, क्या देखो, your teacher has told the average inventory is equal to cycle area by cycle time. I know this very well, sir. Now, what is the cycle area? आप सोच रहे होंगे cycle area is this area plus this area because this is the cycle. But वो गलत है सर, क्योंकि during this time
कोई इन्वेंट्री ही नहीं है सर। अरे यार वो तो शॉर्टेज चल रहा है, कोई मेरे स्टोर हाउस में इन्वेंट्री नहीं है। व्हेन देयर इज नो इन्वेंट्री, वेयर इज द कैरिंग कॉस्ट? मेरे पास कोई इन्वेंट्री नहीं है, तो कैरिंग कॉस्ट क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आप बताइए कैरिंग कॉस्ट कब होगा सर? ओनली व्हेन देयर इज इन्वेंट्री। इस बेस लाइन से ऊपर जो भी एरिया है, उसी दौरान, ड्यूरिंग दैट टाइम ओनली देयर इज इन्वेंट्री। तो कैन आई से दिस इज द इन्वेंट्री अवेलेबल? बिकॉज यहां से तो कोई इन्वेंट्री है ही नहीं है, शॉर्टेज है। व्हेन देयर इज नो इन्वेंट्री देयर इज नो स्टोरेज कॉस्ट। जब कोई इन्वेंट्री नहीं, कोई स्टोरेज कॉस्ट ही नहीं होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट करना है, तो व्हाट डू आई डू? साइकिल एरिया। प्लीज नोट डाउन दैट ड्यूरिंग दिस टाइम, ऑफ कोर्स आई नो दैट दिस इज द कंप्लीट साइकिल, ड्यूरिंग दिस टाइम क्या इन्वेंट्री स्टॉक अपने स्टोर हाउस में है? नहीं है, तो इसको जीरो होगा, क्योंकि स्टॉक नहीं है। व्हेन देयर इज नो इन्वेंट्री देयर इज नो कैरिंग कॉस्ट। देयर इज इन्वेंट्री ओनली व्हेन इट इज अबव द बेस लाइन। इस बेस लाइन से जो भी ऊपर है तभी तो इन्वेंट्री है सर। इस बेस लाइन से जो भी ऊपर है तभी तो इन्वेंट्री है सर। मित्रों इधर देखना, इस बेस लाइन से जो भी ऊपर है तभी इन्वेंट्री है। इधर देखो, तो यही इन्वेंट्री है। देखो इन्वेंट्री है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, फिर भी है, कम हो रहा है, कम हो रहा है जीरो। यहां पे तो कोई इन्वेंट्री नहीं है, तो देर इज नो कैरिंग कॉस्ट। सो वॉट एवर द कैरिंग कॉस्ट इज देयर माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज ड्यूरिंग दिस रीजन। व्हाट इज द साइकिल एरिया? हाफ। देखो हाफ बेस, ये एरिया, व्हाट इज द बेस? व्हाट इज द बेस? आई वांट दिस एरिया T1 into height. What is this height sir? This height is IM। सर फिर आप ये एरिया क्यों नहीं लिए? क्योंकि वो एरिया को जीरो ले लेंगे। क्यों जीरो ले लेंगे सर? कोई इन्वेंट्री ही नहीं है, तो कैरिंग कॉस्ट कैसे? व्हेन देयर इज नो इन्वेंट्री, हाउ कैन देयर बी ए कैरिंग कॉस्ट? सो देयरफॉर इट्स नॉट देयर। बाय साइकिल टाइम, मेरा टोटल साइकिल टाइम इज टी, साइकिल टाइम। सो द एवरेज इन्वेंट्री, देखो क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, ही विल गिव यू सम क्वेश्चंस माय डियर। गलत, IM/2। हाँ देखो सुनो, he will give you some questions in examination. What is the average inventory? That's why I said you should know all the details. रटे सो वाले danger में जाएंगे sir. If you are by hearting certain things, you are always in danger. So therefore, the average inventory is IM/2 into small t1 by capital T1. This is the average inventory. So if you want the carrying cost, what will be the carrying cost? It will be CC into Q average. It is IM/2 into sorry, IM/2 into T1/T। देखो CC Q average, ये Q average, this is my carrying cost sir. So have you understood the concept of carrying cost sir? Please बताइए। For one unit it is CC, so if you want the total carrying cost, average inventory, so therefore average into carrying, it will give me the average inventory। ये समझ में आया? Hope you understood। मेरे परम पूजनीय विद्यार्थी, आप लोगों को समझ में आया बेटा? देखो जब मैं आपको इतना टाइम दे रहा हूं, तो समझो, एक बार अगर मूड खराब हो गया कि बच्चे नहीं पढ़ रहे, तो बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे सर। तो आप बोलेंगे हमें क्या फर्क पड़ेगा, हमें तो पढ़ाने वाले बहुत है, बहुत अच्छा है, पढ़ लो। सो देयरफॉर, सो वी हैव कैलकुलेटेड ऑर्डरिंग कॉस्ट। देखो और देखो, आइटम कॉस्ट ओवर, ऑर्डरिंग कॉस्ट ओवर, होल्डिंग, और होल्डिंग इज आल्सो नोन एज कैरिंग कॉस्ट। होल्डिंग को आई कैन आल्सो से कैरिंग कॉस्ट। यस। लास्ट में शॉर्टेज कॉस्ट देखते हैं सर। हाउ मेनी ऑफ यू कैन टेल द इक्वेशन फॉर शॉर्टेज कॉस्ट? अब देखो शॉर्टेज कॉस्ट तभी आएगा व्हेन देयर इज अ शॉर्टेज। इफ देयर इज नो शॉर्टेज, शॉर्टेज कॉस्ट नहीं आएगा। एक बार देखो सर मित्रों, लेट अस गो फॉर शॉर्टेज कॉस्ट। लेट CS be the shortage cost per item per year। What does it mean? अगर एक शॉर्टेज है, उसके लिए we have to pay CS रुपीस। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से CS is 4 रुपीस। क्या मतलब है सर?
If there is one shortage, we have to pay 4 rupees for 1 year. But एक तो शॉर्टेज नहीं है ना, हाउ कैन आई फाइंड अगेन? देखो एक बार मित्रों, लेट्स सी द ग्राफ, बहुत मजा आएगा सर। ये साइकिल हो गया सर, ये मेरा T2 है सर, ये मेरा S है सर, दिस इज T। ठीक है सर, मुझे बताओ बेस लाइन से ऊपर इज देयर एनी शॉर्टेज? शॉर्टेज कॉस्ट विल कम ओनली व्हेन देयर इज अ शॉर्टेज। बेस लाइन से ऊपर कोई शॉर्टेज है नहीं है, तो कब शॉर्टेज है? देखो ये शॉर्टेज है सर, ये शॉर्टेज है। Very good. There is no shortage here because there is stock available above this line, but below this line it is a shortage. Now, what will be the, because the shortage is continuously changing, sir. For some time shortage ये है, उसके बाद थोड़ा shortage है, तो is the shortage constant or changing? टाइम के साथ शॉर्टेज चेंज होते जा रहा है सर, नहीं है समझ में? पहले दिन शॉर्टेज 5 था, दूसरे दिन 10 हो गया, तीसरे दिन 15 हो गया, मींस शॉर्टेज इज वेरी, सो व्हेनेवर समथिंग इज चेंजिंग यू हैव टू टेक एवरेज। व्हाट इज दैट एवरेज अगेन? सो देखो अब मैं लिखता हूं, शॉर्टेज कॉस्ट एस सी, इट इज द शॉर्टेज कॉस्ट एक आइटम के लिए इतना है, तो एवरेज ले लो आप, एवरेज शॉर्टेजेस ले लो, बिकॉज ये जो शॉर्टेज है ना वो कांस्टेंट नहीं है सर। ओरिजिनली द शॉर्टेज वाज 0, उसके बाद में मैक्सिमम आ गया, उसके बाद में मैक्सिमम आ गया, तो पूरे साइकिल में तो क्या करना चाहिए सर आपको? whenever something is changing you take average। बहुत बढ़िया सर। तो let us calculate the average, क्या बोलते हैं, let's calculate the average shortage। मेरे प्यारे दोस्तों, how to calculate average? ऑलरेडी मैं बता दिया, it will be cycle area by cycle time, cycle area by cycle time, so therefore S average will be equal to, what is the cycle area? आप सोच रहे ये पूरा लेना, because baseline से ऊपर stock is available, when the stock is available it's not a shortage, तो only this is the shortage, तो इसका area calculate करो, half base height, okay, divided by cycle time, capital T, half base height by cycle time. So therefore the shortage cost is given by CS into S average. What is S average? देखो S by 2, S by 2 into T2 by T, this is our shortage cost. Now I am ready with all costs, yes or no sir जी? सर जी, सो एग्जाम में अगर आपको एवरेज शॉर्टेज, एवरेज इन्वेंट्री पूछता है तो ये वाले कर लेना सर। मैं आई एम ओपनिंग अप एवरीथिंग, आपको सारा समझ में आए जैसा कर रहा हूं सर। सो ऐसा नहीं कि मैं भगा के फटाफट ले रहा हूं, नो सर। आर यू रेडी विथ ऑल कॉस्ट? देखो देखो एक सेकंड, एक सेकंड मित्रों, देखो शॉर्टेज कॉस्ट भी आ गया सर, अब सारे ऐड करेंगे। नाउ आई राइट, देखो देखो, द टोटल कॉस्ट विल बी इक्वल टू item cost is DC plus ordering cost is DC naught by Q plus inventory carrying cost is CC into, भूल गए देखो, भूल गए देखो, लेट मी चेक सर ये सही है या गलत। कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट CC IM by 2, CC IM by 2, small t1 by capital T, yes, plus shortage, एक बार चेक करते हैं सर, CS S by 2, CS S by 2, T2 by T, very good sir, yes, no, यहां तक anyone has any problem sir? That's why I said do not by heart. No sir, wait, initially, oh my god, यहां पे तो only the cycle time is fixed because fixed cycle time से ही चल रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। कैपिटल T इज इक्वल टू T1 प्लस T2, देखो एक बार,
क्या ये पॉसिबल है सर? My cycle time is fixed. 12 दिन, 12 दिन, 12 दिन, 12 दिन. But individually T1, T2 can vary, but the summation is constant. Oh my God. Let us see what are the different variables. इसमें बताइए, whenever you want minimum cost, what am I supposed to do? Whenever you want minimum cost, you differentiate this cost with variable and equate it to zero. Wait. Q is equal to IM plus S. आपको करना क्या है सर? एक ऐसा क्वांटिटी कैलकुलेट करना है सो दैट द टोटल कॉस्ट इज मिनिमम. मतलब ये वेरिएबल है सर. यू हैव yesterday also we have differentiated with respect to q, क्योंकि you were supposed to find out one such quantity q where the total cost is minimum. एक ऐसा q को कैलकुलेट करो ताकि मेरा टोटल कॉस्ट मिनिमम हो जाएगा. सो दिस इज अ वेरिएबल. जब ये वेरिएबल है तो ये दोनों भी वेरिएबल्स है सर. अब इसमें बताओ कितनी वेरिएबल्स है, बताओ सर. देखते हैं सर. हाउ मेनी ऑफ यू कैन टेल हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर इन दिस? कांस्टेंट, डिमांड इज कांस्टेंट, आइटम कॉस्ट कांस्टेंट, सी नॉट कांस्टेंट, क्यू वेरिएबल. ओके, क्यू हो गया. सीसी कांस्टेंट है, आईएम इज वेरिएबल, आईएम इज वेरिएबल, टी1 इज वेरिएबल, कैपिटल टी इज कांस्टेंट, शॉर्टेज कॉस्ट सीएस इज कांस्टेंट, एस इज वेरिएबल, नंबर ऑफ शॉर्टेजेस आर वेरिएबल, टी2 इज वेरिएबल. ओ माय गॉड, 1 2 3 4 5. हे भगवान सर, हाउ कैन यू से 3? प्रॉब्लम क्या है ना, मैं कुछ जुगाड़ करूंगा सर. व्हाट इज दैट जुगाड़? माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज इसको एलिमिनेट करने की कोशिश करना. यू ट्राई टू ब्रिंग इनटू मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स. आई नो देयर आर मेनी वेरिएबल्स, बट व्हेन यू आर डिफरेंशिएटिंग, आई शुड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू मिनिमम वेरिएबल. एक अगर दो है तो पार्शियल करेंगे. देखो देखो, फर्स्ट ग्राफ जब स्टार्ट किया था, एक बात देखो सर. d इज इक्वल टू क्यू बाई टी, d इज इक्वल टू आई एम बाई टी वन, d इज इक्वल टू एस बाई, ये वाले देखो, ये देखो, d इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ये वाले ले लेंगे. तो d इज इक्वल टू क्यू बाई टी, d इज इक्वल टू आई एम बाई, हाँ कुछ मिल रहा है सर, कुछ मिल रहा है सर. देखो, d इज इक्वल टू क्यू बाई टी, d इज इक्वल टू आई एम बाई टी वन, d इज इक्वल टू एस बाई टी टू. हाँ, मेरे परम पूजनीय विद्यार्थी, स्मॉल टी वन बाई कैपिटल टी, स्मॉल टी वन बाई कैपिटल टी कुछ ला सकता हूं सर? एक बार देखना, ये वाला डी है, ये वाला डी है, तो कैपिटल क्यू बाई टी इज इक्वल टू आई एम बाई टी वन. अब आप बताओ व्हाट इज स्मॉल टी वन बाई कैपिटल टी? स्मॉल टी वन बाई कैपिटल टी इज आई एम बाई क्यू. मित्रों, तो आई विल रिप्लेस दिस विथ आई एम बाई क्यू. एब्सोल्युटली वंडरफुल. नाउ लेट अस टेक दिस टू. तो q बाई टी इज कैपिटल डी, ये भी कैपिटल डी है, s बाई टी टू. सो देयरफॉर नाउ t2 बाई कैपिटल टी इज इक्वल टू t2 बाई कैपिटल टी इज इक्वल टू s बाई क्यू, s बाई क्यू. क्या ये सही है सर? यस. अब ये यहां पुट करूंगा सर. मित्रों समझ में आया? देखो, मैंने क्या किया, t1 t2 को गायब कर दिया सर, t1 t2 को गायब कर दिया. इधर देखो, सो द टोटल कॉस्ट विल बी इक्वल टू dc dc plus dc naught by q plus cc by 2im into cc im by 2 into t1 by t. What is t1 by t? Im by q. It is im by q plus css by 2, css by 2, small t2 by capital T. Small t2 by capital T is s by q. It is s by q. So एक बार देखो सर, so total cost will be equal to dc plus dc naught by q plus im square im square cc by 2q plus s square into cs, s into s is a square by 2q. So now you tell me, in this equation, how many variables are there? I'll be very happy if you give the answer. See the chronology. D is constant, C is constant, Q is variable, IM is variable, S 3.
Sir, you are not saying anything. That's why it is hurting us. नो, एक काम करते हैं सर, ये सबको इरेज कर देंगे सर और ये वाला रख लेंगे सर. So total cost is equal to DC plus. Is this correct? DC plus DC naught by Q plus IM square CC by 2Q plus S square C. Yes. यहां तक क्लियर है? क्लियर क्लियर क्लियर. नाउ व्हाट एम आई सपोज टू डू? देखो, एक काम करते हैं सर, वी हैव वन मोर रिलेशनशिप, IM plus S is equal to Q. तो कैन आई राइट दिस एज, मेरे प्यारे दोस्तों, कैन आई राइट IM is equal to Q minus S? हाँ, दिस इज द फंडामेंटल इक्वेशन सर, डू नॉट फॉरगेट दिस इक्वेशन बिकॉज इसको बहुत इस्तेमाल करेंगे. दिस इज द फंडामेंटल इक्वेशन, दिस इज द वेरी फंडामेंटल इक्वेशन, डू नॉट फॉरगेट दिस इक्वेशन. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको मैं कहाँ रखूं सर? तो ये यहीं पे रख देंगे, यहीं पे रख देंगे. देखो देखो, वेट, हो गया सर, हो गया, वी आर नियरिंग. सो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू DC प्लस DC नॉट बाई Q प्लस CCIM स्क्वायर, क्या था रे, बाई 2Q. ऐसा था, एक बार मैं चेक कर लेता हूं. CCIM स्क्वायर बाई 2Q. यस. उसके बाद क्या था सर? CS स्क्वायर बाई 2Q. यस 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 यस, बिल्कुल सही है सर. अब देखो, नाउ क्या करेंगे सर? अब बताइए व्हाट टू डू. बताओ व्हाट टू डू. नाउ यू टेल मी व्हाट टू डू. हाउ मेनी वेरिएबल्स? हाँ 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 हाँ, कुछ ऐसा करेंगे सर. व्हाट इज IM? देखो, IM प्लस S इज इक्वल टू Q. IM प्लस S इज Q. तो व्हाट इज IM सर? S, सॉरी, व्हाट इज IM सर? देखो, IM plus S is Q, तो IM will be equal to Q minus S, but it is IM square plus CS S square by 2Q. ये मेरा इक्वेशन हो गया सर. अब बताइए सर, हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर? मित्रों, हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर? नाउ आई विल डू सम वेरी गुड क्वेश्चन सर. एक बार क्लैरिटी आने के बाद बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस करवाऊंगा सर. हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर? एग्जैक्टली, Q and S, only two variables Q and S. तो ऐसा करेंगे सर एक बार, एंड ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है सर. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये वाला नहीं, एक सेकंड, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है सर. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन सर. हाँ, बट यू शुड नो हाउ टू राइट दैट इक्वेशन. उसको कैसे लिखना ये समझना बहुत जरूरी है सर. हाउ टू राइट दैट इक्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है सर जी. अब देखो, नाउ देखिए मित्रों, अब देखो, दिस इज द इक्वेशन. तो मैं क्या करूं? as there are two variables, मेरा मैथमेटिक्स बोलता है सर, whenever we have two variables, you differentiate partially with, suppose z is a, देखो एक बार,
z is a function of xy, तो मैं क्या करता हूं, I'll differentiate this partially with x. Whenever I differentiate partially with x, I treat y as constant. Case one. Then second case, I differentiate partially with y, treat x as constant. So that is the procedure. अब मैं क्या कर रहा हूं सर? Now what I do is, for एक सेकंड मैं अभी आया, just 1 minute please. अब देखो, देखो, for minimum cost मैं क्या कर रहा हूं, डिफरेंशिएट दिस टोटल कॉस्ट विथ रेस्पेक्ट टू एस एंड इक्विटी टू जीरो। ये एक बार फर्स्ट टाइम करेंगे। सेकंड टाइम क्या करेंगे, इस केस में आई विल बी ट्रीटिंग Q as constant। देखो, so this is differentiating partially with S, treating ये first case। second में क्या करेंगे, in second case I will be differentiating this with respect to Q and treating S as constant and equating it to zero। तो दो conditions आ जाएंगे। क्या ये बात सबको समझ में आई सर? मेरे प्यारे, तो सिंपल मैथमेटिक्स सर, सिंपल मैथमेटिक्स, इट्स अ सिंपल मैथमेटिक्स। क्या ये बात सबको समझ में आई सर? क्लियर? अब देखो, लेट मी डिफरेंशिएट। देखो, देयर इज नो एस जीरो, इसमें कोई एस नहीं है। डी इज कांस्टेंट, सी नॉट इज कांस्टेंट। आई नो क्यू इज वेरिएबल, बट यू आर डिफरेंशिएटिंग पार्शियल विद एस। व्हेन यू डिफरेंशिएट पार्शियल विद एस, क्यू विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट। तो ये क्या होगा सर? जीरो प्लस सी सी बाई टू क्यू इंटू, अब इसको डिफरेंशिएट करना है, एक्स पावर एन, n into x power n minus 1, 2 minus 1, again you differentiate q minus s, q is constant तो जीरो, इसका डिफरेंशिएशन 1 है, वेरी गुड सर, इसका डिफरेंशिएशन 1 प्लस cs by 2q, square differentiation is 2s and that should be equal to 0। वेरी गुड सर। क्या ये बात सबको समझ में आई सर? लेट मी रिपीट सर, 0 0, तो सी सी बाई टू क्यू, तो ये क्या होगा सर? 2 इंटू क्यू माइनस एस, तो क्यू का डिफरेंशिएशन 0 है, एस का 1 है, प्लस सी स्क्वायर स्पेस। ओके, अब देखो सर, तो क्या होगा सर? आई थिंक सी सी, ये टू कट जाएगा, ये माइनस इधर आएगा, तो एस माइनस क्यू। बात क्लैरिटी? नो, आई डू वन थिंग। देखो देखो, तो माइनस सी सी बाई क्यू इंटू, हो गया सर लास्ट स्टेज, इंटू क्यू माइनस एस, माइनस माइनस इधर ले लेना, माइनस माइनस सी सी बाई क्यू इंटू क्यू माइनस एस प्लस सी एस एस बाई क्यू शुड बी इक्वल टू जीरो। बहुत बढ़िया सर। तो ये वाला दूसरे साइड पे ले लेंगे सर, विल टेक इट टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो माइनस सी सी बाई क्यू, माइनस सी सी बाई क्यू इंटू क्यू माइनस एस प्लस सी एस एस बाई प्लस सी एस एस बाई क्यू इज इक्वल टू जीरो। ये हो गया सर। ना, आई थिंक कुछ कर सकते सर, ये उधर ले लेना, सी एस एस बाई क्यू इज इक्वल टू ये, तो ये उधर लेना, सी सी बाई क्यू इंटू क्यू माइनस एस, तो ये कट गया सर। तो बचा है सी एस एस इज इक्वल टू सी सी क्यू माइनस सी सी एस, तो ये इधर लेना, सी एस एस प्लस सी सी एस इज इक्वल टू सी सी क्यू। बहुत बढ़िया। तो एस को कॉमन ले लेना, सी सी प्लस सी एस इज इक्वल टू सी सी क्यू। सो एस विल बी इक्वल टू, एस अगर चाहिए तो सी सी क्यू बाई सी सी प्लस सी एस, ये मेरा इक्वेशन है सर, लास्ट इक्वेशन ये। क्या ये बात सबको समझ में आई सर?
and you are supposed to last may I will give you some equations which you have to remember. So it means if you want minimum total cost, only these many shortages must be permitted. इससे अगर ज्यादा या कम होगा तो कॉस्ट मिनिमम नहीं होगा. सो ओनली दीज मेनी शॉर्टेजेस मस्ट बी परमिटेड. क्या ये बात सबको समझ में आई सर? मित्रों, ना नेक्स्ट इज क्यू. मेरे परम पूजनीय विद्यार्थी इधर देखो. सो मेरे पास एक इक्वेशन है रे, तो ये याद रख लेना सर. सीसी बाई सीसी प्लस एस इंटू एस. ओके, अब देखो नेक्स्ट पार्ट मैं क्या कर रहा हूं सर मेरे प्यारे दोस्तों. नेक्स्ट पार्ट मैं क्या कर, इधर देखो सर. नेक्स्ट पार्ट व्हाट आई डू इज सिमिलरली आई टेक दिस इक्वेशन. क्या हो रहा सर बच्चों को? मेरे बच्चों को हो क्या रहा है सर? मेरे बच्चे जिंदा है या मर गए? कैसा है सर? मुश्किल है सर आपको पढ़ाना. तो मैं क्या कर रहा हूं सर नेक्स्ट, ये तो हो गया सर. तो ये वाला इक्वेशन ले लो. सो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू डीसी प्लस डी बाई क्यू सी नॉट प्लस आई एम स्क्वायर सी सी बाई टू क्यू प्लस सी एस एस स्क्वायर बाई टू क्यू. आई थिंक दिस वॉज द इक्वेशन ना. क्या ये सही था सर? एक बार देख लीजिए, एक बार देख लीजिए. डी सी प्लस डी बाई सी बाई, अरे यार, आ, एक बार देखते हैं सर. सी बाई टू क्यू. राइट. तो अब देखो सर मित्रों, अब देखो टीसी इज इक्वल टू डीसी प्लस डीसी नॉट बाई क्यू प्लस आईएम. आईएम कैन बी रिटन एज क्यू, अरे यार, क्यू माइनस एस का होल स्क्वायर इंटू सी सी बाई टू क्यू प्लस सी एस एस स्क्वायर बाई टू क्यू. क्या ये बात सबको समझ में आई? आई आई यस. क्या करना है? नो, फॉर मिनिमम कॉस्ट differentiate this with respect to q and by treating, ये tc है सर, आई एम सॉरी, एंड s should be equal to 0. अब कुछ नहीं करने का, अब डिफरेंशिएट करो. ध्यान से सुनिएगा, मैं आज आपको असाइनमेंट दे रहा हूं सर. टुडे आई एम गिविंग असाइनमेंट. ओ माय गॉड, फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे असाइनमेंट. ये तो मजाक है सर. हाँ, कुछ नहीं करने का. यू डिफरेंशिएट दिस विथ रेस्पेक्ट टू क्यू. तो आई थिंक इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं सर, बिकॉज दिस इज कांस्टेंट. व्हाट इज 1/x डिफरेंशिएशन? -1/x स्क्वायर. अरे 1/q, q ऊपर जाएगा तो 1/q, तो n इंटू एक्स पावर n -1 -1/q स्क्वायर. इसका कोई प्रॉब्लम नहीं सर. डायरेक्टली प्रॉब्लम इसका भी कोई नहीं, बाई क्यू इसका है सर. इट इज समथिंग लाइक u बाई v. आता है या नहीं आता है सर? देखो यहाँ पे cc बाई टू, इधर देखो cc, आपको असाइनमेंट दे रहा हूं, cc बाई टू को बाहर ले लेना, q माइनस एस होल स्क्वायर बाई क्यू. एक्सलेंट सर. अब इसको डिफरेंशिएट करना, करेंगे कैसा? डिनोमिनेटर होल स्क्वायर क्यू के साथ डिफरेंशिएट करना है. डिनोमिनेटर होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू, कर सकते. अगर वो भी नहीं आ रहा है तो दूसरा भी टेक्निक बताता हूं सर. हमें कुछ नहीं आता, हम तो बुद्धू है, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2qs बाई क्यू. देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यस. तो ये हो जाएगा सी सी बाई टू इंटू क्यू, सेपरेट करो, स्क्वायर बाई क्यू -2s. करेक्ट ना? क्यू क्यू गया, तो इसका डिफरेंशिएशन 1 आएगा, इसका डिफरेंशिएशन 1 आएगा, इसका -1 बाई क्यू स्क्वायर आएगा, इसका 0 आएगा, तो ये भी होगा. सो एंड आफ्टर डिफरेंशिएटिंग 0 पुट करना. तो डेफिनेटली डेफिनेटली इस इक्वेशन में डिफरेंशिएट करने के बाद देखो देखो एक बार,
तो फाइनली ऑलरेडी आपको क्या इसमें क्या फाइंड आउट करना है सर आपको? व्हाट इज दैट यू आर सपोज टू फाइंड आउट? सो प्रीवियसली व्हेन आई डिफरेंशिएटेड विथ s आई गॉट s वैल्यू. नाउ व्हेन आई डिफरेंशिएट विथ q आई शुड गेट q वैल्यू. बात क्लियर है सर? तो लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, जब इसमें देखो एक बार, इसमें s का भी वैल्यू आएगा, तो ऑलरेडी s वैल्यू कैलकुलेट किए. पुट दैट s वैल्यू, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ s, डिफरेंशिएट करके इक्वेट टू जीरो करने के बाद अगर इसका वैल्यू उसमें आता है तो इसका वैल्यू ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेटेड, सीसी इंटू सीसी इंटू एस बाई क्या था, सीसी इंटू क्यू बाई सीसी प्लस सी एस. बताता हूं सर. अरे यार ये वैल्यू, एक सेकेंड, अभी क्वेश्चंस करना है सर. ये सीसी इंटू क्यू बाई सीसी प्लस सी एस. मैं बोल रहा था सर आपको, व्हाट आई एम सेइंग इज यू डिफरेंशिएट विद q इक्वेटेड टू जीरो. तो s का s रहेगा इसमें, तो s को q के टर्म्स में लिखना, तो फाइनली यू विल गेट द वैल्यू ऑफ q. बात समझ में आ गई सर? फाइनली यू विल गेट द वैल्यू ऑफ q. समझ में? ये आपका असाइनमेंट है. तो व्हाट इज योर असाइनमेंट? आपको कुछ नहीं करने का, यू डिफरेंशिएट दिस एंड इक्वेट इट टू जीरो. आई रिपीट सर, यू डिफरेंशिएट दिस एंड इक्वेट इट टू जीरो. हाँ जी सर कर दिए. तो उसमें जीरो पुट करने के बाद इसका s भी रहेगा, तो उस s को ऑलरेडी वी नो द वैल्यू ऑफ s, q cc by cc plus s. Put that value of s. So s को q के टर्म्स में लिखो, तो पूरा इक्वेशन q में आ जाएगा. Solve for q, you will get the value of q, and that q is known as economic order quantity because you are differentiated and equated to zero. तो आपको आएगा 2dc naught by cc into c. ये आएगा सर. इज दिस ओके सर? ये वैल्यू आएगा सर. अभी मैं आपको 4 मिनट दे रहा हूं, करके दिखाओ सर. 4 मिनट दे रहा हूं, करके दिखाओ. सो 4 मिनट्स, 4 मिनट्स क्या करेंगे बोलो आप? व्हाट विल यू डू? मैं बताता हूं सर, सुनो. देखते हैं सर, हाउ मेनी ऑफ यू आर सीरियस? देखते हैं सर. कुछ नहीं करने का, यू डिफरेंशिएट दिस एंड इक्वेट इट टू जीरो. तो आपको एस कुछ बचेगा, उस एस को ऑलरेडी आई नो एस एज सी सी क्यू बाई सी सी प्लस सी एस. तो एस का वैल्यू इसमें पुट करके सिर्फ क्यू बचेगा. क्यू का वैल्यू कैलकुलेट करो, तो ये आएगा. एक बार सही आ रहा है गलत आ रहा है देख लो प्लीज. सी, आई विल बी बैक इन 2 मिनट्स. आप करो प्लीज.
चलो, सो एम आई ऑडिबल? एक बार देखता हूं सर। यही आया सर? एनीवन कैलकुलेटेड? नहीं ना, लीव इट सर, आप असाइनमेंट करो, आप असाइनमेंट करो, ठीक है सर। और कुछ ये होगा, दिस इज द क्वांटिटी, मतलब इफ यू परचेस दिस मच क्वांटिटी विथ शॉर्टेजेस यू विल गेट अ मिनिमम कॉस्ट। इज इट क्लियर? डोंट वरी सर, फाइनली आई विल टेल यू व्हाट आर द इक्वेशंस दैट यू, मतलब ये मत सोचो सर इतना डेप्थ में क्यों पढ़ा रहा है पूरा, बिकॉज वी डोंट नो वेयर फ्रॉम क्वेश्चंस आर कमिंग। अगर ऊपर ऊपर पढ़ेंगे तो नहीं निकलेगा सर एग्जाम, प्लीज अंडरस्टैंड। ओके, ओके, चलो, नाउ फाइनली व्हाट वी डू इज द टोटल कॉस्ट। तो क्या करेंगे सर, इधर देखो मित्रों, इधर देखो, द टोटल कॉस्ट इज, मित्रों, इट इज आइटम कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट प्लस शॉर्टेज कॉस्ट, दीज आर द कॉस्ट। ठीक है सर जी। नाउ लेट अस ट्राई टू कैलकुलेट द मिनिमम कॉस्ट। क्या आप तैयार है आप लोग सब? अगर आप तैयार है तो मैं स्टार्ट करूंगा सर, इधर देखो। सो द टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, ऑलरेडी आई नो द आइटम कॉस्ट। देखो एक काम करते हैं सर, इज इट अ वेरिएबल कॉस्ट सर? क्या ये वेरिएबल कॉस्ट है सर? नहीं सर। तो मैं क्या करूंगा सर, इसको थोड़ा हटा दूंगा सर, लेट मी इरेज दिस सर, बिकॉज आई विल राइट दिस एज वेरिएबल कॉस्ट। देखो एक बार, देखो, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू ये होगा सर, इट्स नॉट द टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट आइटम कॉस्ट भी आएगा, सो आइटम कॉस्ट इज कांस्टेंट, सो इट्स नॉट, इट डजंट कम अंडर वेरिएबल कॉस्ट। क्या ये बात सबको समझ में आई सर? हाँ। अब देखो सर, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट। व्हाट इज द ऑर्डरिंग कॉस्ट सर? अभी तो बताएं, डी सी नॉट बाई क्यू। एंड व्हाट इज द कैरिंग कॉस्ट? अभी तो बताएं, कैरिंग कॉस्ट इज आई एम स्क्वायर cc by 2q, and the shortage cost is s square cs by 2q। तो अभी आपको क्या करना है, आई वॉन्ट द मिनिमम कॉस्ट, तो क्या करेंगे, अगर आपको मिनिमम कॉस्ट चाहिए, दिस विल बी स्टार। वेरी गुड सर। एंड ऑलरेडी आई नो आई एम, देखो देखो, ऑलरेडी आई नो आई एम, देखो एक बार, आई एम प्लस एस इज इक्वल टू क्यू। तो आई एम को क्या लिखेंगे, एस माइनस क्यू। सो देयरफॉर आई एम कैन बी रिटन एज क्यू माइनस एस, इसका होल स्क्वायर। तो अगर मिनिमम है तो यहाँ पे स्टार आ जाएगा सर, बहुत बढ़िया। तो मैं क्या कर रहा हूं, ऑलरेडी यू नो द वैल्यू ऑफ क्यू स्टार, दिस क्यू स्टार इज इक्वल टू 2d c naught by cc into cc plus cs by cs। ये वाला हो गया सर क्यू स्टार, क्यू स्टार। तो ऑलरेडी इसका वैल्यू भी पता है सर, इसका वैल्यू क्या है, सी सी क्यू बाई सी सी प्लस सी एस। ध्यान से सुनिएगा, एस वैल्यू इधर पुट करो, क्यू स्टार का वैल्यू इधर पुट करो, तो आपको टोटल वेरिएबल कॉस्ट आएगा, वो मिनिमम होगा। क्या ये बात सबको, लेकिन ये आपका असाइनमेंट है सर, एंड यू हैव टू डू इट सर। सो अगर आप नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा सर। इज इट ओके? ओके, ओके, राइट। अब देखो, तो कुछ नहीं करने का, इसका वैल्यू इधर पुट करो, इसका वैल्यू इधर पुट करो। देखो ये इसका वैल्यू, यू पुट द वैल्यू ऑफ एस हियर, क्यू स्टार वैल्यू हियर, यू विल गेट द टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब ध्यान से सुनो सर, कुछ बातें बताऊंगा एंड देन आई विल कंपेयर ऑल दिस। एक सेकंड सर। तो द टोटल मिनिमम वेरिएबल कॉस्ट इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ 2d c naught cc into सी एस बाई सी सी प्लस सी एस। ये होगा सर आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट मिनिमम। तो ये एक्चुअली
आई हैव नॉट सॉ मतलब मैं पूरा डिराइव नहीं किया, ऑलरेडी पूरा बता दिया सर। दीज आर द थिंग्स अबाउट दिस शॉर्टेज कॉस्ट। अब देखो सर, आई वांट टू पुट एवरीथिंग वन प्लेस। देखो सर, नाउ व्हाट आई डू इज, मेरे प्यारे दोस्तों, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, देखो वॉट एवर वी हैव स्टडीड यस्टरडे एंड टुडे 5 मिनट में पूरा हो जाएगा सर। 5 मिनट्स में कंप्लीटली ऑन स्क्रीन। देखो कंप्लीटली ऑन स्क्रीन, देखो सर, कंप्लीटली ऑन स्क्रीन। विदाउट शॉर्टेज, शॉर्टेज, देखो मुझे बताओ सर, विदाउट शॉर्टेज व्हाट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी? 2d C naught by cc। yesterday I derived this equation। क्या ये इक्वेशन क्लैरिटी है सर सभी को? और कल ध्यान से सुनिए सर, कल ये भी बताया है एट EOQ ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट, ये भी बता दिया था सर, बहुत बढ़िया। देन द टोटल वेरिएबल कॉस्ट मिनिमम इज रूट, इसमें आइटम कॉस्ट नहीं आएगा, वेरिएबल कॉस्ट 2d C0cc। आई थिंक आई हैव डिराइव्ड दिस, याद है सर किसी को? ये तो कल का है सर, yesterday I derived this। अब आइए सर, विच शॉर्टेज, what is the equation of shortage sir? The equation of shortage is cc by cc plus cs। very good sir। उसके बाद उसके बाद what is q star? 2d C naught by cc into, ये सही है या गलत है सर? बिल्कुल सही है सर। देन द टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज गिवन बाय, मित्रों, इज गिवन बाय रूट ऑफ 2d C0cc इंटू cs बाय cc प्लस cs। दैट्स इट सर। सिर्फ ये वाले याद रख लेना, बस खत्म है सर। एंड वन मोर थिंग इज, यहाँ पे q प्लस, सॉरी, दैट्स इट, वॉट एवर यू हैव सेड। अब समझ में आया सर? डियर स्टूडेंट्स, हैव यू अंडरस्टूड दिस? सिर्फ ये याद रख लेना सर। बट एंड वन मोर थिंग दैट यू शुड नो इज, देखो देखो, दुनिया 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 दुनिया, दिस इज आवर क्यू, दिस इज आवर साइकिल टाइम, स्लोप इज डी, इसका स्लोप, इसमें शॉर्टेजेस अलग नहीं है। इधर आइए, दिस इज एस, दिस इज IM, मैक्सिमम इन्वेंट्री, दिस इज Q, D, E, T1, T2। एक बार पूरा माइंड में छपा देना प्लीज, जस्ट एक बार माइंड में पूरा कर देना। आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू जस्ट कीप इट इन माइंड। क्लियर?
प्लीज एक बार देख लो। कम ऑन एक बार। ठीक है, बस। नाउ विल टेक अप सम लवली क्वेश्चंस। अब हम कुछ नए क्वेश्चंस ले लेंगे सर। एक बार माइंड में रिवाइज कर लेना। एक सेकेंड, चलो मित्रों, रिवीजन हो गया। एक सेकेंड, चलो ओके। अब विल टेक अप क्वेश्चंस इफ यू आर रेडी। इफ यू आर रेडी विल टेक अप क्वेश्चंस। अब हम रेडी हो रहे हैं सर। हम सवाल के लिए रेडी हो रहे हैं सर। ओके, गुड, वेरी गुड। ओके, चलो पहला क्वेश्चन। एक सेकेंड, प्लीज आई एम आस्किंग यू वन थिंग। तो हैव यू फॉलोड सर? देखो, जो पढ़ा रहे वो नहीं सुनते, ये कब होगा? टू बी ऑनेस्ट, आई एम टोटली डिसअपॉइंटेड बेटा। मैं तो टोटली डिसअपॉइंट हो गया क्योंकि स्टूडेंट्स आर नॉट टर्निंग अप। मतलब बच्चे आ ही नहीं रहे, तो मैं क्या करूं? स्टूडेंट्स आर नॉट कमिंग। बच्चे तो नहीं आ रहे, तो मैं क्या करूं? चलो पहला क्वेश्चन ले लो। लेट्स टेक द फर्स्ट क्वेश्चन। यही मॉडल कर लेंगे सर से। एक सेकंड, अच्छा रहेगा। हाँ, पढ़ो सर, रीड द क्वेश्चन। कैन यू सी? दिख रहा है सर? रीड द क्वेश्चन, आई विल डू इट।
चलो पढ़ो सर। हो गया, चलो। The demand for an item is 12,000 per year. D is 12,000 per year. And the shortage is allowed. The unit cost is 15 rupees. Okay. And the holding cost is, देखो, holding cost or carrying or holding cost is 20 per unit per year. ठीक है सर. Determine the optimum total yearly cost. What do you mean by optimum total yearly cost, sir? Exactly. Optimum का मतलब मिनिमम. 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 तो आपको क्यू स्टार निकालना पड़ेगा. एक सेकंड. सीसी इज 20. और कुछ दिया सर? The cost of placing one order is, the ordering cost is 6,000 per order. And the cost of one shortage is, देखो एक बार, the cost of one shortage is कितना है सर? 100 rupees. पूछा गया सर. And the let's do it and solve, मतलब सारा solve करेंगे सर, इसमें पूरा complete कर देंगे सर. Okay. What is the demand, sir? The demand is 12,000. ठीक है सर. उसके बाद CC is 20. CC is 20. ठीक है. And CS is 100. कहाँ गए रे वो? CS is 100. C is 15. And C naught is 6,000. देखो सर, let us solve everything sir. The same, मतलब इस क्वेश्चन में what can be asked, मतलब बहुत सारे पूछ सकते सर. क्या है एक बार देख लेंगे. एक बार देखो सर. Can I calculate the number of shortages? It is Q into CC by CC plus CS. क्या ये सही है गलत है सर? बिल्कुल. Let us calculate the number of shortages. Q तो आया ही नहीं सर. Oh my God. तो Q कैसा निकलेगा सर? I know very well. यहाँ पे Q का मतलब Q स्टार सर. यहाँ पे Q का मतलब 2D C naught by CC into CC plus CS by CS. वेरी गुड. तो लेट अस कैलकुलेट दिस. ये एक्चुअली क्यू स्टार है सर. क्यू स्टार है, मुझे पता है. रूट ऑफ 2 टाइम्स. व्हाट इज द एनुअल डिमांड? 12,000. C naught is 6,000. ठीक है. By CC, what is CC sir? 20 into CC is 20 and CS is 100 divided by CS is 100. Anyone? What is the value of? फटाफट आंसर दीजिए सर. फटाफट आंसर दीजिए सर. आर यू श्योर? नहीं देखो, नहीं, ओनली वन हैज गिवन. हाउ कैन आई डिपेंड? गलत है क्या? 2D is 1200 or 12,000? 12,000. CC is 20. CS is 100. C is 15. C naught is 6,000. कितना आ रहा है सर? एक एक आंसर दे रहे रे. ओ गॉड. मतलब ये कैलकुलेशन भी अगर नहीं आता है तो व्हाट कैन आई डू सर? वाह, मजा आ रहा है सर.
कोई भी आंसर नहीं दे रहा है। वाह 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 वाह, क्या बच्चे हैं रे बाबा। बताओ कितना आ रहा है सर? नो वन इज गिविंग, आई एम चेकिंग। बहुत बुरा हाल है सर आपका। एनीवन? 22939, एक सेकंड में चेक करता हूं। Q is 2 into 12, 1, 2, 3. CC is 20. 2939 is correct. Yes. एक बार did I substitute 2? D is 12,000. C naught is 6,000. By CC is 20. And CC is 20. Plus CS is 100. By CS is 100. I think you are getting Q as 2 2940 ले लेंगे सर। 2940 ले लेंगे। 2940. Excellent. Put it here. 2940 into CC. What is CC, sir? 20 by CC plus CS. It is 20 plus 100. तो कितना आ रहा है सर ये? 490 ना? Is it correct? मतलब क्या है ना, इतने शॉर्टेजेस परमिट कर सकते हैं हम। इज इट करेक्ट? गलत है सर, 490 इज करेक्ट ना। एंड व्हाट इज द मैक्सिमम इन्वेंटरी पूछ सकता है सर। ही मे बी आस्किंग यू, पूछ सकता सर। तो व्हाट इज द मैक्सिमम इन्वेंटरी? Q इज इक्वल टू IM प्लस S। सो देयरफॉर Q कितना है सर? 2940 is IM plus 490. What is the value of maximum inventory? अरे यार, नो वन इज गिविंग आंसर, बुरा लग रहा है सर मुझे। इज इट 2450? यस। लेकिन ये नहीं पूछा सर, पूछा है यू नो, ही आस्क्ड टोटल वेरिएबल कॉस्ट मिनिमम 2DC naught CC into CS by CC plus CS. This is the variable cost. देखो, so TVC star is equal to demand is 12,000, ordering cost is 6,000, and what is CC? CC 20, CS 100. बताइए सर ये कितना आ रहा है? कम ऑन। हाँ, एनीवन विद द वैल्यू? करेक्ट आंसर दीजिए सर। गिव मी करेक्ट वैल्यू। सही है सर वो? 2 into 12,000 into 6,000 into 20 by, हे भगवान।
नो गलत आ रहा सर. What is happening, sir? Asking total cost. तो उसमें आइटम कॉस्ट भी आएगा, इसमें तो आइटम कॉस्ट नहीं आएगा. सो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू द टोटल, अगर मिनिमम टोटल कॉस्ट चाहिए, टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस आइटम कॉस्ट. सो देयरफॉर ऑलरेडी टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो आ गया 48989.8. व्हाट इज द आइटम कॉस्ट? डी इंटू सी. द एनुअल डिमांड इज 12,000. करेक्ट ना सर? द एनुअल डिमांड इज 12,000. कहाँ गया वो क्वेश्चन? अरे यार. एंड क्या है रे? द यूनिट कॉस्ट देखो एक बार, प्लीज सी. द यूनिट कॉस्ट इज 15 रुपीज. Is 15 rupees. So annual demand, it is item cost is DC. So it is 15. तो टोटल कितना आ रहा है सर? डबल टू 8989. एनीवन गॉट दिस आंसर सर? बिल्कुल सही है सर. तो वन क्वेश्चन सिंगल, देखो सिंगल क्वेश्चन सारे ओपन किए सर. एक बार देखना. लेट मी ट्राई टू शो इट ऑन द ग्राफ. मेरे प्यारे दोस्तों, एवरीथिंग लेट अस सी ऑन ग्राफ. दिस इज आईएम. आईएम कितना है? ये वाला आईएम था. And this is our S. So I think we have calculated. एक बार देखो IM कितना है रे? IM is 2450,490. 2450. S is equal to 490. Correct. And Q is 2940. ऐसा कुछ आया था ना? Correct. And अभी कुछ बचा है सर. Anyone? एक क्वेश्चन में सारा कंप्लीट करेंगे. Is it 2940? Is it 2940? Yeah. Anyone? What is left? The slope of this is D is 12,000 per year. अब देखो सर, you know that D is equal to Q by capital T. ये इक्वेशन पता है सर, Q by capital T. So therefore, this is, ध्यान से सुनो, T will be equal to Q by capital T. So T will be equal to, what is Q sir? 2940 by capital D. What is capital D? 12,000 per year. तो ये ईयर ऊपर जाएगा. So T will be equal to, this year will go to the top. So therefore 2940 0.245 of the year. तो 1 year means 365 days. अगर इसको 365 से मल्टीप्लाई करेंगे, this will be equal to, I am multiplying with 365, it will be 89.42 days. Is it correct? The cycle time पूछ सकता है सर, what is the cycle time? This is the cycle time. Now मुझे बताओ what is T1. ध्यान से सुनो. And you know very well T1 कैसा कैलकुलेट करेंगे? This is my T1. In a single question we are solving everything, even though he has not asked.
मैं सारे कर दे रहा हूं सर इससे, इधर देखो। एंड कैन आई राइट डी इज इक्वल टू आई एम बाई टी वन, ऑलरेडी यू नो द स्लोप डी इज आई एम बाई टी वन, सो देयर फोर नाउ देखिए, सो टी वन इज इक्वल टू आई एम बाई कैपिटल डी, so therefore T1 is equal to IM. What is IM? 2450 by capital D. What is capital D? 12,000. लेकिन ये पर ईयर है तो ईयर आएगा, तो मैं क्या कर रहा हूं सर, इसको आई मल्टीप्लाई विथ 365 इधर इनटू 3, ये ईयर में आएगा सर, दिस इज पर ईयर, 12,000 per year, that year will go to the top, so you'll get the answer in year. So if I multiply with 365, I'll get in days. कितना आ रहा है सर? Excellent sir, excellent. And what will be T2? Total 89 में से, because the cycle time is T1 plus T2. अगर T2 चाहिए, it will be capital T minus T1. Capital T is 89.4 minus T1 is 74.5. 14.8 आ रहा है सर? Excellent sir. 14.8 और 15 days, round off कर देना, 15 days. So T2 is 14.8 days. बहुत बढ़िया सर. So let me explain physically. मैं थोड़ा इसको physically explain करने की कोशिश करूंगा. क्या मतलब है सर? You are ordering after every 89 days. 89 days को एक बार ऑर्डर कर, ऑर्डर आ रहा, इसका मतलब तो 74 डेज तक आपके पास इन्वेंट्री है और 14 to 15 डेज के लिए आप शॉर्टेजेस अलाउ कर रहे हैं, तो टोटल साइकिल टाइम इज दिस. इज द क्वेश्चन, मतलब पूरा क्लैरिटी आ गया सर, एक ही क्वेश्चन में सारा कंप्लीट कर दिया सर. सिंगल क्वेश्चन वी हैव सॉल्व्ड एवरीथिंग. कसम से बोलो आया सर, व्हाट अ ब्यूटी सर, एक ही क्वेश्चन में कंप्लीट शॉर्टेज. इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग वेटेज इज अराउंड 7 to 8 marks in GATE. बहुत अच्छा लगा सर मुझे. ओके सर, पढ़े तो डेप्थ में पढ़ो, नहीं तो मत पढ़ो सर. देखो यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन है सर, सुनो केयरफुली. अच्छा क्वेश्चन है, कैन यू सी सर, दिख रहा है या नहीं? द डिमांड ऑफ एन आइटम इज 3,200. द यूनिट कॉस्ट इज 6 rupees. द इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इज, देखो एक बार, द इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इज 25% पर एनम. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अगर आपको कैरिंग कॉस्ट चाहिए, ये इन्वेंट्री बेसिकली किस पे आ रहा है सर? अपने कैपिटल कॉस्ट. आई एम परचेसिंग समथिंग, आई एम परचेसिंग समथिंग, तो व्हेन आई एम परचेसिंग समथिंग तो कैपिटल कॉस्ट पे आ रहा है सर. ओके, सो इसीलिए इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ द आइटम, सो वी कैन एक्सप्रेस द कैरिंग कॉस्ट एज, अगर आपको कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में देता है, इंटरेस्ट परसेंटेज में देता है, तो आपको ऐसे लिखना है, क्योंकि कैरिंग कॉस्ट इज ऑलवेज ऑन द कैपिटल कॉस्ट. कैपिटल कॉस्ट का मतलब जो आइटम्स आप परचेस किए, तो आइटम पे जो इंटरेस्ट हो रहा है दैट विल बी कैरिंग कॉस्ट. आइटम पे जो इंटरेस्ट हो रहा है, ठीक है सर. अब देखो, he has also given if the procurement cost means ordering cost is 150. Now C is given. ये shortages नहीं sir, it's not the shortage model. It's not the shortage. देखो, can I calculate CC sir? What is the interest? The interest charges are 25%. The interest is 25%. 25% किस पे? Item cost पे. What is item cost? 6. तो कितना आ रहा है सर CC का वैल्यू? Is it 1.5 rupee? Have you understood sir? CC अच्छा, very good. देखो एक बार मैं बताता हूं. द इन्वेंट्री कैरिंग चार्जेस आर 25% पर एनम. मुझे बताओ सर, कल बताया था आपको, आपने आइटम्स परचेस किया,
तो फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए आइटम्स परचेस किया, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं आता सर। हाँ, व्हेन आई परचेस वो पूरा लाके, यू हैव परचेज एवरीथिंग एंड कीप्ट इन योर स्टोर, तो उस पे इंटरेस्ट नहीं आता सर, उसको कैरी करने के लिए इंटरेस्ट लगेगा। तो समटाइम्स प्रीवियस क्वेश्चन में डायरेक्टली सीसी दिया था सर, ध्यान से सुनो। इन प्रीवियस क्वेश्चन डायरेक्टली, देखो देखो, इन प्रीवियस क्वेश्चन डायरेक्टली सीसी वाज गिवन। अगर सीसी नहीं देता है, दोबारा बता रहा हूं, if cc is not given then you have to write cc as ic, where I is interest and c is item cost। कभी भी आइटम कॉस्ट पे कितना इंटरेस्ट हो रहा, दैट इज स्टोरेज, क्योंकि मैं जब स्टोर कर रहा हूं पैसे देके ला रहा हूं ना सर। अरे बैंक में पैसे जमा करके या फिर बैंक से लोन लेके उस पे इंटरेस्ट पे करके आइटम्स ला लेना, दैट्स व्हाई इट इज एक्सप्रेस एज आईसी। समझ में आया सर अभी भी? बोलो सर। अरे यार दोबारा बता रहा हूं, कैसे स्टूडेंट्स है सर, आपको कुछ परचेस करना है, आपके पास पैसे नहीं है, कैपिटल, तो व्हेन यू आर परचेसिंग समथिंग यू टेक अ लोन, तो इंटरेस्ट है, या फिर all the things put together, तो sometimes the carrying cost is expressed in terms of interest of the item cost। आइटम कॉस्ट के ऊपर कितना इंटरेस्ट हो रहा उसके टर्म्स में कैरिंग कॉस्ट बताएगा। अगर डायरेक्टली कैरिंग कॉस्ट देता है तो डायरेक्टली सीसी दिया जाएगा। इफ सीसी इज नॉट गिवन, यू हैव नॉट अंडरस्टूड सर। समटाइम्स सीसी नहीं दिया जाएगा सर, समटाइम्स आपको सीसी नहीं दिया जाएगा। जब सीसी का वैल्यू नहीं देता है, आप आईसी लिखना। इज इट ओके? अब बताओ, तो व्हाट विल बी सीसी? आई इज 25% मींस बाय 100, आइटम कॉस्ट इज व्हाट सी, तो कितना आ रहा है सर ये? सीसी कितना ये सही अभी भी नहीं आया सर? अभी आया या नहीं आया? इफ इट इज नॉट क्लियर आई विल एक्सप्लेन अगेन। तो सीसी इज 1.5। अब क्या पूछा है सर? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। देखो, दिस इज नॉट शॉर्टेजेस, कहीं पे शॉर्टेज दिख रहा है सर आपको? सो हैव यू ऑब्जर्व्ड एनी शॉर्टेज? बिल्कुल नहीं है सर, ये नॉर्मल विल्सन हैरिस मॉडल है। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज गिवन बाय, एनीवन? 2 into 3200, आई थिंक इट इज 800। तो पहले वाले का आंसर 800। नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर, देखो देखो, हाउ कैन आई कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑर्डर्स? मित्रों, नंबर ऑफ ऑर्डर्स विल बी इक्वल टू डी बाई क्यू। सो एक बार कितना परचेस करें, एनुअल डिमांड कितना है? व्हाट इज द एनुअल डिमांड? 3200। एंड व्हाट इज क्यू वैल्यू सर? क्यू जस्ट नाउ वी फाउंड, तो कितना आ रहा है सर ये? आई थिंक इट इज 800। सो देयरफॉर इट इज 800। सो नंबर ऑफ ऑर्डर्स विल बी इक्वल टू 4। टाइम बिटवीन कंसेक्यूटिव ऑर्डर्स, वेट, टाइम बिटवीन कंसेक्यूटिव ऑर्डर्स, इधर देखना सर, मेरे प्यारे दोस्तों इधर देखो, ये कितना है सर? हाउ मच आर यू परचेसिंग सर? 800। वेरी गुड। तो कितने ऑर्डर्स परचेस कर रहे हैं? पहला ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर। देखो, 1 2 3 4। तो आप बताइए, दिस इज 1 ईयर, मीन्स 12 मंथ्स। 12 मंथ्स में आप 4 बार खरीद रहे हैं, तो एक कितने गैप में खरीदेंगे सर? 3 months, exactly. So in 12 months you are purchasing 4 times. So with what gap you are purchasing? 12 by 4 is 3. So this is 3 months. This is 3 months. This is 3 months. This is 3 months. ठीक है सर। एंड ऑलरेडी इसका स्लोप पता है सर, 3200 पर ईयर। बहुत बढ़िया। तो समझ में नहीं आया आपको? इज दिस क्लियर? अभी क्वेश्चन समझ में आया सर? से समथिंग, से समथिंग।
ओके, उसके बाद क्या पूछा है सर, एक बार देखो लास्ट में, he asked the optimal variable cost, means he is asking TVC star. Okay, it will be 2. What is the demand? 3200. What is the ordering cost, sir? The ordering cost is 150 and the carrying cost is 1.5. So what is the total variable cost, sir? बताइए. 1200 rupees per year. Very good, sir. थोड़ा कॉन्फिडेंस आया सर. Say something, dear. Next question. ये करो. Let us do. कंपनी का नाम है केम, कुलकर्णी एकेडमी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग. परचेजेस 9000 पार्ट्स फॉर इट्स एनुअल रिक्वायरमेंट. तो एनुअल डिमांड इज 9000. ऑर्डरिंग 1 month यूसेज एट ए टाइम, मतलब एक महीने को एक बार खरीद रहा है. ठीक है सर. ईच आइटम कॉस्ट 20. अब आप बताइए, अगर वो एक मंथ में ऑर्डर कर रहा है तो कितने ऑर्डर्स करेगा सर साल में? दिस इज द डिमांड पर ईयर. तो एवरी टाइम हाउ मच इजी परचेसिंग सर, ध्यान से सुनिएगा सर एक बार. हाउ मेनी ऑर्डर्स? नंबर ऑफ ऑर्डर्स इज इक्वल टू 12. व्हाई द नंबर ऑफ ऑर्डर्स आर 12? Why the number of orders are 12? Because every month he is purchasing, so therefore n is 12. तो quantity कितना होगा सर? N is equal to D by Q. So Q will be equal to D by N. The annual demand is 9000 by N is 12. So what is the quantity that he is purchasing? 9000 divided by 12. 750. ठीक है. The item cost is 20. The ordering cost is 15. And the carrying, देखो एक बार, carrying cost is 15% of the average inventory per year. तो 15% का मतलब 0.15. कभी भी याद रखना, whenever the interest is given, that interest will be on the item cost. So 15% of item cost is 20. तो कितना आ रहा है सर ये? Anyone with carrying cost 15% दिया है, कितना होगा सर? 0.15 into 20. This is 3 rupees. So everything is known. अब क्या पूछ रहा है सर? You have been asked to suggest more economical purchasing quantity for the company. What advice? वो क्या कर रहा था? Every time इतना परचेस कर रहा था. तो वो बोल रहा है क्या ये सही है, क्या कोई एडवाइस देंगे? तो मुझे तो पता है मिनिमम कॉस्ट तभी होगा जब आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे. तो कैलकुलेट करो सर. व्हाट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी? अंडर रूट ऑफ 2d c नॉट बाय cc. तो देयरफॉर अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स व्हाट इज d? d is 9000. ओके, c नॉट, व्हाट इज c नॉट सर? 15 बाय cc. व्हाट इज cc? 3. कितना आ रहा है सर? व्हाट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी? It is economic order quantity. 300. तो इसका मतलब ये है, instead of purchasing 750 at a time, ask him to purchase 300 so that the total cost will be minimum. क्या ये समझ में आया सर सभी को? Let's see कितना कॉस्ट में फर्क आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, देखेंगे सर. So let us see कि total variable cost minimum क्या होगा? It will be 2t c naught cc. So total variable cost minimum will be equal to
2 times what is the demand, sir? देखो एक बार, what is the demand? The demand is 9,000, and C naught is, what is C naught, sir? C naught. The ordering cost is C naught 15 into CC. I think CC is 3 rupees, na? Right. Value bolo, sir. 2 into 9,000 into 45. वेरी गुड सर। अगर ये नहीं खरीद रहा है, नॉर्मल खरीद रहा है, तो क्या होगा सर? द टोटल वेरिएबल कॉस्ट विल बी इक्वल टू ऑर्डरिंग कॉस्ट इज डी बाई क्यू सी नॉट प्लस एवरेज इन्वेंट, कल देखे थे इन्वेंट्री कॉस्ट इज, ये फर्स्ट मॉडल का। अब देखते हैं सर नॉर्मल कॉस्ट कितना होगा। व्हाट इज द एनुअल डिमांड? द एनुअल डिमांड इज 9,000, and what is the quantity that he is purchasing? He is purchasing 750, and the ordering cost is kitna ordering cost hai? 15 plus Q is 750 by 2 into CC. What is CC, sir? CC is 3. Ab bolo, if he is not going by economic order quantity, how much cost is he incurring, sir? 1505. मतलब if he is going by economic order quantity, itna lagega. If he is not going by economic order quantity, if he is going by his own idea, 1305. Extra kitna hoga, sir? 1305 minus 900. तो कितना आएगा सर? ये I think 405 rupees extra pay करना पड़ेगा. Is it okay? So I am stopping here, sir, with total disappointment. I am stopping the class. Exactly, Mr. Naveed Ali. Exactly. तो आई एम स्टॉपिंग द क्लास विथ ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट। शायद यूट्यूब पे अब हम नहीं आएंगे। मेरे कुछ गिने चुने स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाऊंगा सर, बिकॉज मजा नहीं आ रहा आपको पढ़ा के, बिकॉज यू पीपल आर नॉट शोइंग इंटरेस्ट ऑल्सो। मेरा भी इंटरेस्ट पूरा गया। सो चलो, गुड बाय, थैंक यू। क्योंकि आई डोंट नो वेदर आपको आई एम नॉट हैप्पी टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि आई डोंट वांट टू टीच ऑन यूट्यूब। मेरे गिने चुने लोगों को ही अभी, टू बी ऑनेस्ट, मैं बहुत मतलब बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि ना आजकल लोगों को ऑनलाइन जब पढ़ाते हैं ना, दे टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। बिकॉज मैं 25 साल से पढ़ाते आ रहा हूँ, जब ऑफलाइन पढ़ाते थे हम, इतने डिसिप्लिन में स्टूडेंट सीखते थे और उनका रैंक आता था। आजकल ऑनलाइन में बहुत कम लोग हैं, हार्डली 10% स्टूडेंट्स आर सीरियस, बट अदर्स, मुझे दुख लग रहा है सर। आई एम रियली सॉरी। गुड बाय। एफएम का रिवीजन, मैथ्स का रिवीजन जब आप आते ही नहीं, मेरा टाइम क्यों बर्बाद करूं? आई विल इन्वेस्ट दिस टाइम समवेयर। देखो, शॉर्टेज कॉस्ट एक क्वेश्चन में मैं सारे कैसे कवर किया। चलो, मैं सोच के बताऊंगा सर। तो देखते हैं सर। अभी तो आई एम लीविंग विथ डिसअपॉइंटमेंट। ओके, चलो, गुड बाय, थैंक